esteemed dignitaries and interns, it's an honor to be here today. As we all know, like every year, we gather here at MidCon to celebrate and recognize the wonderful medical fraternity of our institute. Today, with the same intent, we have with us a batch of bright, young and enthusiastic doctors who joined this prestigious institute in the year 2018 and have made it through one of the most difficult times of the human history, the unforgettable time of COVID-19. The pandemic tested many, but these resilient individuals have shown immense dedication and perseverance. They dedicated themselves to the service of others and faced plenty of challenges with courage and compassion. As they conclude their internship, let's celebrate their journey and offer them the guidance as they embark upon the next phase of their careers. And to begin with, we have with us today our esteemed guest speakers from the batch 1996 to enlighten the path of knowledge and motivate our interns for the journey ahead. I'm delighted to introduce Dr. Vivek Jain, who holds MBBS from MAMC and MD in Community Medicine from Lady Hardinge Medical College. His professional journey includes significant work with the United Nations Office on Drugs and Crime. Dr. Jain's expertise extends to teaching, having conducted live sessions for over 5 lakh students across various countries. Additionally, he is the acclaimed author of 7 best-sellers on medicine. Dr. Jain's teaching spirit shines through his involvement in several edtech startups, and he serves as a co-founder of Cerebellum Academy. Joining him is Dr. Apurv Mehra, who is also an alumnus of MAMC. Dr. Mehra did his MBBS from MAMC and MS in Orthopedics from the University College of Medical Sciences. Dr. Mehra is the founder of Vidya Jeevan Orthopedic Center and Conceptual Orthopedics. Alongside Dr. Vivek Jain, he is also a co-founder of Cerebellum Academy. Dr. Mehra's diverse talents include teaching, writing, and motivational speaking, making him an invaluable asset in the field of medicine as well as education. I request Dr. Vivek Jain and Dr. Apurv Mehra to come on stage and address the gathering. A big round of applause. It was not Cerebellum Academy, it was Nancy because that is what I thought. So I think before I pass on the mic to my senior, Vivek sir, I'll request all of you to speak MAMC एक बार जोर से. You know, I wrote a line in this PPT, and the line was that you can check out from this place, but you can never leave, because whenever you will cross this area, आप जब भी यहाँ से निकलेंगे या MAMC नाम आपको सुनाई देगा तो आपको एक अलग इमोशन आपकी आंखों में चमक जाएगा. And you will find a Molanian everywhere you go. आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाना, आप किसी बीच के कोने में शांति ढूंढना, वहाँ भी आवाज़ लगाओगे तो MAMC की आवाज़ आ जाएगी. Alright, so मैं एक गाना चूज किया था आज की शाम के लिए, बिकॉज आप लोगों का मूड थोड़ा अलग है और यहाँ पे तो इसके बाद, इस गाने के बाद आपको सब लेक्चर सुनाने वाले हैं. तो आप जितने भी यहाँ पे इंटर्न बैच हैं हाथ ऊपर करें. और एक बहुत है यार, इतने तो अंदर आए कैसे, तुम्हें लाया कौन अंदर? ऑर्गेनाइजर्स के लिए एक बार जोर से ताली बजा दो, तुम्हें अंदर लेके आए. बहुत बड़ी बात है, इतने इंटर्न्स को अंदर लाना, ये तुम्हारे लिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू. आएगा. तो अब तुम्हारे ठिकाने को ठीक जगह पहुंचाने के लिए आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विवेक जैन सर टू स्टार्ट द टॉक व्हाट इट टेक्स. एक बार सर के लिए जोर से ताली बजा दो. थैंक यू. वी आल्सो हैव गोगा भाई एंड जैनब स्टैंडिंग बिसाइड देयर. ये जो जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं आपको इनके लिए कुछ एक बातें बोलता हूँ. आप सबके लिए भी. मैं भी अश्विनी सर के स्टेटमेंट सुन रहा था, शायरी सुन रहा था. सो माना है कि चुपचाप खड़े रहते हैं. फॉर पीपल हियर हु आर इन सेरेब्रम अकेडमी एंड पीपल हु आर ऑन द फ्रंट रोज एंड हियर ऑल ऑफ यू, माना कि चुपचाप खड़े रहते हैं, पर जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं. हमारी महफिल सस्ती है उन लोगों से जिनके कदमों पे कई ताज खड़े रहते हैं. थैंक यू.
Thank you, Apoorv sir. And thank you so much, all the teachers and member dignitaries. दोस्तों, welcome everyone. All the best for your future. दोस्तों, जाने से पहले कुछ बताना चाहूँगा what it takes. जब what it takes मैंने देखा तो मुझे क्या समझ में आया, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ. All of you are starting a new part of your life, I think day after tomorrow. कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना है उसमें सबसे पहले जो मुझे समझ में आता है वो है ऑनेस्टी. ऑनेस्टी टू योर प्रोफेशन, ऑनेस्टी टू योर पेशेंट्स एंड बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ एटलीस्ट. दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. हमेशा इट विल पे. आपके साथ काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, वैसे तो आप सभी जीनियस हो, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका IQ शायद 150, 160 प्लस, 180 प्लस भी होगा. उनको तो बीट नहीं कर सकते टैलेंट में, बट हार्ड वर्क कैन बीट टैलेंट एट एनी गिवन डे. ये तो हम सब जानते हैं. अभी बाहर एक स्टूडेंट मिला था मुझे, मैंने पूछा कैसा लग रहा है, कहता है सर अच्छा भी लग रहा है बुरा भी लग रहा है. कह रहा है अच्छा लग रहा है कि मजदूरी खत्म हो रही है. तो मैंने उसे बोला देखो एक तो मजदूरी वर्ड गलत है, और फिर भी अगर तुम इस पे इंसिस्ट कर रहे हो तो खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरुआत है, याद रखना. तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी. आप MDMS ज्वाइन करोगे, यू विल गो फॉर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन. अब खत्म नहीं होगी, अब खत्म नहीं होगा कुछ भी. दिस इज जस्ट द स्टार्ट. तो टेक अ ब्रेक, आई थिंक 1 or 2 days, गेट बैक वेर एवर यू वॉन्ट टू बी एंड चैनलाइज योर एनर्जी. देखो आप सब, हम सब के मुकाबले अगर देखें तो आप सबकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है. आप सबका व्हाट शुड आई से एक्यूमेन, क्लिनिकल एक्यूमेन भी आई होप हम सबसे बहुत बेटर ही होगा. तो चैनलाइज योर एनर्जी एंड डिलीवर योर बेस्ट. दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. एक दो चीज़ें, क्या किसी लॉयर को आप मार सकते हो कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घुस के? नहीं. तो डॉक्टर्स में व्हाट आई फील अ बिग थिंग मिसिंग इज यूनिटी. ट्राई टू स्टे यूनाइटेड, ट्राई टू स्टे टुगेदर. ये बहुत ज़रूरी है. डॉक्टर्स की यूनिटी बहुत शॉर्ट लास्टिंग दिखती है कई बार, क्योंकि हमारी शायद PG 3 ईयर्स, सीनियर रेजिडेंसी 3 ईयर्स, उसके बाद सब अपनी अपनी लाइफ में. बट ट्राई टू स्टे टुगेदर. यू हैव एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया विद यू. टेक दैट एडवांटेज. एंड लास्ट थिंग बिफोर आई इन्वाइट बैक डॉक्टर अपूर्व सर, ये मोटिवेशनल नहीं है, ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है. जब भी आप आगे बढ़ोगे देयर विल बी मेनी फेलियर्स, मेनी सक्सेसेस. प्लीज रिमेंबर सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन. ये मैं डेलिबरेटली बोलना चाहता था आज के ओकेजन पे, क्योंकि आई हैव सीन एवरी ईयर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं दैट दे हैव क्लियर्ड द एग्जाम और दे हैव अचीव दिस. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव नॉट क्लियर्ड द एग्जाम, हैव नॉट अचीव वट एवर दे वांटेड टू बी. तो खुशी दुख होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख होता है जब हर साल 8 से 10 मैसेज तो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के ही आते हैं, या उनके बारे में कोई और इन्फॉर्म करता है ऑन सोशल मीडिया दैट सुसाइड दे हैव कमिटेड. सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन. You never have to bow down to any pressure, never bow down to any bullying, but never bow down to your self ego also, right? So please remember, stay safe, stay healthy. और अपने पेरेंट्स को भी ज़रूर आज याद करना, क्योंकि उनकी वजह से ही शायद आप यहाँ पे बैठे हो. तो पेरेंट्स को जाके नमन करो, टीचर्स आपके सामने हैं उनको नमन करो. एंड ऑल द बेस्ट, स्टे ऑन कोर्स. थैंक यू सो मच. आपने एक वर्ड शायद गलत बोला. कौन सा? पेरेंट्स को So I have 5 minutes and उसके बाद we will have another 5 minutes and फिर हम आशीष सर को जो है माइक दे देंगे, right? So this is something I clicked in one of the programs where we organize, and there are 2 balloons and I've been very fond of balloons. जब से मैं छोटा था, मैं अभी भी छोटा हूँ, तब मैं बहुत छोटा था. So ये है रेड कलर्ड हार्ट शेप बलून और ये है ब्लू कलर्ड फिश शेप बलून. सो आई यूज्ड टू बी क्रेजी फॉर बलून्स बिफोर आई फाइनली बिकेम अ बलून. ढंग से हटो, ताली बजाओ यार, ढंग से ताली बजाओ. So I used to walk on the streets of Gwalior with my dad and मैं हमेशा बोलता था पापा ये दिलवा दो, but they used to be very expensive. But 6 साल के बच्चे को समझ नहीं आता था कि एक्सपेंसिव क्या होता है. पर वो लड़ता था, तो मैं क्या करता था, पापा को बोलता दिलवा दो, नहीं तो आपके घर की इज्जत सड़क पे आउट. कपड़े उतार के फेंकता था, मिट्टी में रोल होता था, बलून वाले से तंग जाता था, साइकिल लाता था. पर 10-15 मिनट की लड़ाई के बाद जब मैं बाहर निकलता था तो पापा के हाथ में कपड़े, मेरा शरीर मिट्टी से सना होता था, मेरे राइट हैंड में ब्लू कलर्ड बलून और लेफ्ट में जो है वो हार्ट शेप बलून होता था. एंड आई यूज्ड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट्स लाइक अ किंग एंड इट यूज्ड टू हैपन एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ व्हेन आई वाज यंग.
और जब मैं घर जाता था माई मॉम यूज टू स्क्रब मी एंड बट आई नेवर यूज टू अनफोल्ड माई हैंड्स, इनको पकड़ के रखता था पक्का कस के। फिर रात को सोता था, तब भी लास्ट मोमेंट मुझे याद होता था बलून्स के साथ मैं सोता था अपनी आंखों में लेके। एंड देन आई यूज टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी कि बेटा कैसा रहा। मैंने कहा आपके बेटे की इज्जत फिर से सड़क पर उतार दी मैंने, राइट। तो हुआ क्या, मैंने कहा कुछ नहीं, बलून ले आया। तो दिस इज वॉट शी टोल्ड मी, as you will grow in life, this is just the beginning, as Vivek sir said, as you will grow in life, the balloons will keep on changing the shape. It might become the college you wish, it might become a seat you want, it might become a car you wish to buy, the girl you wish to marry, the hospital you want to build, the jet you want to own, the hospital or anything or a book you wish to write. But अगर तुम्हारे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है, तुम्हारे ऊपर कपड़े हैं कि नहीं, तुम्हारे को मिट्टी से सने हो कि नहीं, so at the end of the day you will have your balloons, but you need to know what is your balloon. So the first thought is, right, ढंग से ताली बजाओ यार, तुम क्या। तो दूसरा, हम चाहते बहुत कुछ है, पर सब कुछ वैसे होता नहीं जैसे हम चाहते हैं। So this is from Mahabharata, alright, Shri Krishna and Arjun were there, and एक मछली जो है वो ऊपर रूफ से होती है, जो घूम रही होती है, इट्स रोटेटिंग, और उस मछली की आँख में तीर मारना होता है। बट प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ऊपर देखना अलाउड नहीं है, नीचे एक छोटा सा वो होता है बेसिन जिसके अंदर पानी होता है, आपको उसके अंदर देखना होता है और आँख में तीर मारना होता है। आपको नीचे देखना है, आपको ऊपर मारना है, राइट। सो अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से पूछता है कि भगवान कैसे होगा, तो वो बोलते हैं पार्थ इज नेम ऑफ अर्जुन, कि तुम्हारे को बहुत ध्यान देना है। कहता ओके, तुम्हारे को अपना जितनी भी मेहनत करी है उसको ढंग से यूटिलाइज करना है, ओके। जब तुम्हें पता लग जाए कि ये मछली की आंख है, तुम्हें आंख के अलावा कहीं नहीं देखना है, तुम्हें पूरी जोर से तीर खींचना है और ऊपर मारना है। कहता ओके। तो उन्होंने बोला कि मैं अपना सारा टैलेंट यूज़ करूँगा, अपनी सारी मेहनत यूज़ करूँगा, जान भी मैं लगाऊंगा, राइट। तो आसपास के लोग जो बोल रहे होंगे मैं उसको भी नहीं सुनूंगा, तो भगवान आप क्या करेंगे, राइट। दिस इज़ वॉट श्री कृष्णा टोल्ड अर्जुन कि व्हेन यू विल बी शूटिंग टू द आई, लुकिंग इन द वाटर, आई विल बी होल्डिंग द वाटर स्टिल फॉर यू, ताकि वो पानी ना हिले। अगर वो हिल गया तो आँख हिल जाएगी, तुम्हारा निशाना चूक जाएगा। सो आई जस्ट प्रे टू गॉड व्हेन ऑल ऑफ यू ट्राई इन योर लाइफ, देयर इज गुड गॉड अबव होल्डिंग द वाटर फॉर यू, सो दैट वट एवर यू विश गॉड ग्रांट्स यू, ऑलराइट। आई वेंट टू मुंबई, अ स्टूडेंट आस्क्ड मी कि सर आज से 30 साल बाद मेरी ज़िंदगी में क्या नहीं होना चाहिए। सो आज से 30 साल बाद तुम्हारी ज़िंदगी में ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये मौका था अपनी ज़िंदगी को बदलने का, काश तुम वो जान लगा लेते तो आज वो तुम बनते। एंड दिस इज़ व्हाट दिस लाइन मीन्स, राइट। तेरी किस्मत दा लिखा तेरे तो कोई खो नहीं सकता, तू शर्म करा चल बंदे। एज ही जस्ट सेड, यू नो, एनी हार्ड वर्क कैन बीट एनी टैलेंट, राइट। व्हेन द टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, इट्स डिफीटेड बाय हार्ड वर्क, बिकॉज दिस इज़ व्हाट यू शुड रिमेंबर, ऑलराइट। तू शर्म करा चल बंदे, जो उसकी मेहर हुई तुझे वो मिल जाएगा जो तेरे हो नहीं सकता। सो इवन बाय योर हार्ड वर्क द गुड गॉड अबव विल रीराइट योर डेस्टिनी, ऑलराइट। आई सेड, I started with this. You might cross this road many times, but मैं आपको बता रहा हूँ, you'll miss a beat. As long as you will survive in this world, when you will cross your college, when you will cross this line, आपको यहाँ पे सब कुछ याद आएगा। मेरा सजेशन है कि स्टॉप ओवर, आशीष ढाबा से मिलते हुए जाना, कभी कभी डीन्स कारपेट पे चक्कर लगा लेना, कभी कभी की तरफ देख लेना, ऑलराइट। कभी कभी वो लाइब्रेरी के कैंपस में भी चले जाना, go to that Amul or Nescafe, whatever it is, it keeps on changing its name every 2 years. कभी कभी वहाँ बैठ भी जाना, alright. Go around the hostels which have changed their name to OBH and NBH, you know, because it's very important to live before you die, and this is the place you will always live, because this is the place you will feel the oxygen is there, and you will feel that it will bring back to the day that you are living today. So ये दिन आपको हमेशा याद रहेगा. This is what you should do. When I was making this PowerPoint, मेरी टीम मुझे जानती है, तो उन्होंने बोला सर एक एस मिस हो गया, ऐसा नहीं है, ये गाना मैं तुम्हें सुना चुका हूँ, है ना, it's already done. So this is what I want to say. You might wonder what you will do, but if you remember what it takes, it's your determination, your dreams, your balloons, your unwavering hard work and your belief that's going to make all the difference. And this is what I want to end my talk with. मैं चाहूँगा हम सब एक बार सब लोग खड़े हो जाएं, हमारे सीनियर्स के साथ भी इस हॉल में, और हम एक बार साथ में मिलके इसको गाना गाएं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. आप भी खड़े होइए सर, आपके भी सपने हैं, आपके भी अपने हैं, ऑल राइट. एंड देन आफ्टर दैट आई विल आस्क गोगा भाई एंड जैनब टू स्पीक टू लाइन्स फॉर यू, वो भी बोलेंगे, ऑल राइट, है ना. सो आप सबको जोर से तालियां बजानी है साथ में. मैं आपको सिखाता हूँ ताली कैसे बजाते हैं, ऐसे देखो.
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं भय किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। राइट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। और बिफोर आई पास ऑन द माइक, आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक everybody who's a part of our team, who is working day and night to see what Cerebellum Academy has achieved. I would also like to thank Vivek Jain sir for personally giving me an opportunity in his batch to squeeze in and speak. And thank you Ishan sir for allowing me time here. Thank you very much. And Goga bhai. चुके वो सुनने की कोशिश में हूँ, मैं चुपचाप रहने की कोशिश में हूँ। सब कहा जा चुका, कुछ ना कहने को है, इसी दुख को कहने की कोशिश में हूँ। तो माय नेम इज डॉक्टर गोविंद राय गर्ग, नाम तो सुना होगा। ऑल यू हैव जस्ट कंप्लीटेड द इंटर्नशिप फ्रॉम मैमसी, और मैमसी से इंटर्नशिप कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। एंड मे बी, जस्ट मे बी, वी कैन मेक अ नेटफ्लिक्स सीरीज ऑन योर एडवेंचर्स इन इंटर्नशिप। इंटर्नशिप डायरीज, स्टेथोस्कोप, स्कैल्पल एंड स्लीपलेस नाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप सबके लिए तालियां बजा लो, खुद के लिए। Now, as Dr. Vivek and Dr. Apurv also said, कि जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो बहुत आगे मेहनत करनी है। सो यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर पीजी एंट्रेंस, मे बी फॉर MLE, मे बी फॉर एनी अदर एग्जाम। सो द स्टडी विल नॉट एंड। आप MBBS में आगे पढ़ाई तो कभी ख़त्म होगी नहीं। सो आई विल एडवाइज कि नॉट ओनली स्टडीज़, यू शुड कीप योर मेंटल हेल्थ इन चेक। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे वर्क करना है। आपको नॉट ओनली स्टडीज़, आपको एंजॉय भी करना है लाइफ, कि यू शुड नॉट रिमेन वन डायमेंशनल। ठीक है, आपको सब कुछ करना है। तो स्टडी करते हुए भी आपको एंजॉयमेंट करते रहना साथ साथ, बिकॉज अदरवाइज स्टडीज गेट बोरिंग। अगर आपको स्टडीज़ में मज़ा आएगा तभी आप स्टडीज़ कर पाओगे। तो जैसे अगर आपको कहो कि क्रैब साइकिल है, क्रैब साइकिल को हम किसी मूवी की तरह, बॉलीवुड की स्टोरीज की तरह सुनाएं तो बेटर याद रहता है। जैसे हम कहेंगे कि क्रैब साइकिल, क्रैब्स की कहानी, ATP, प्यार और धोखा, तो इट विल बिकम मोर इंटरेस्टिंग। सो ट्राई टू मेक एवरीथिंग इंटरेस्टिंग अकॉर्डिंग टू योर वेज। और जैसे सब कहते हैं कि पीजी एंट्रेंस एग्जाम आएंगे, उसमें MCQs आएंगे, और MCQs जब भी आप करते हो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, बिकॉज छोटी सी मिस्टेक से, आगे पीछे एक वर्ड हो जाने से, एक कॉमा से आंसर चेंज हो जाता है। जैसे इस बात के बिना मेरी कभी भी टॉक एंड भी नहीं होती है। कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आप कहते हैं कि चलो पूजा करते हैं, या फिर चलो पूजा करते हैं, तो द मीनिंग चेंजेस। So you should be very careful while attempting all the MCQs. Yeah? So we are all here with you students. So any problems, we are always a call away. Dr. Apurv and Dr. Vivek हैं, हमें आपके लिए हमेशा available हैं। तो जब भी आप चाहोगे, you can approach us. And I will not take more time in between you and Dr. Zainab. Dr. Zainab, please. Hi guys, how are you all feeling?
You're all looking very nice, I must say, very sharp. And this is going to be the last time in the next 1 year that you're going to get dressed up, let me tell you that. So enjoy this day, party hard, and as sir said, you know, is phase ko enjoy karo. I know there's going to be a lot of stress, lot of competition. It is almost a rat race which we've made it into, but don't forget that life is passing you by as we keep preparing for NEET PG. So, you know, we tend to focus on the small A's, but we miss the big A's in between. That is something which, you know, it's called a disease, which is called a simultagnosia. We miss the forest for the trees. So this is what I want to tell you, that focus on the trees, enjoy this process. Don't lose out on your friends in this process of preparing for NEET PG. We were 4 of us, we were given 15 minutes, I think so, on the basis of age or experience. I have 1 minute which I had, and that is done. So wishing all of you all the very best, enjoy, and my name is Zainab Bora. I forgot to introduce, and मेरा नाम शायद नहीं सुना होगा, but सुनोगे ज़रूर. Thank you so much. So I'll give the mic to the best speaker, Apur sir. सर सबसे पहले जो फ्रंट रो में हमारे सीनियर बैठे इनके लिए जोर से ताली बजाओ. When I was into the wards, मैम रिचा देवान मैम ने हमें अपने हाथ से काम सिखाया. मैंने she's taught us, and you know, it's something that's with us forever. Wherever we go, you know, whatever we have learned in an institute, in your parent institute, that's very very precious for us. And जो आप लोगों ने रास्ते दिखाए हैं, उन्हीं पे चल रहे हैं, right? And this is what I want to say. हमें right रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल गए. This is what we want to say. आप कहीं भी जाइए, wherever you go, you will learn from your seniors, and till whatever day you live, the learning never ends. Remember this. This is what should be the one. And over to the man, Ashish sir, but introduce to aap karenge na nahi. Thank you very much for having us here, right? Thank you. And team of Cerebral Academy for this wonderful time. Now I request our chief guest, Dr. Anil Agarwal, to come on stage and felicitate our speakers, Dr. Vivek Jain and Dr. Ashok Mehra with the comments. ताली बजा दो यार. Thank you so much, sir.